everyone. I'm Vishali Tanwar, and I'm making this video because I want to talk about something which is very personal to me and sensitive too. I want to talk about ITP, which is immunothrombocytopenia pura pura. I know the name is very heavy, but that's how it is. You may say it's ITP. It's a rare immune disease, and in this disease, the platelet count, is not stable. And this was last year in August, September when I started getting some rashes all over my body. And before that, I did not had any episode of dengue or fever or anything like that. I had just recovered from COVID 3 to 4 months ago. And I got these rashes. They were like if I would pinch anywhere, so I would get a bruise or the blood clot would form. ऐसा था. And we consulted couple of doctors online and they suggested that आप कुछ anti allergy ले लो and it should be fine, some skin allergy or something like that. तो हमें लगा ठीक है, हो जाएगा ठीक 1-2 दिनों में, बट ऐसा हुआ नहीं. Eventually I started seeing them all over my body, on my neck, face, everywhere. Then after few days I got my pregnancy test done and we went to the gynecologist. We were very happy, that the report was positive, and we were sitting in front of the doctor and she said, are you bleeding from anywhere? So I said, no, I'm not. She said, but your platelet count is just 10,000. So I said, we were like, आई डोंट नो मतलब हमें कुछ समझ नहीं आया एकदम से ये क्या हुआ. सो शी सेड द काउंट इज एक्सट्रीमली लो. सो वी सेड व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट. सो शी सेड जस्ट इधर द रिपोर्ट इज रॉन्ग, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको अभी प्लेटलेट इन्फ्यूज़ करानी पड़ेंगी. सो शी सेड जस्ट रश टू द हॉस्पिटल, अभी इवनिंग टाइम है, कहीं पे और टेस्ट होगा नहीं, तो आप अभी जाइए और कराइए टेस्ट हॉस्पिटल में. और अगर यही सेम काउंट आता है, just get yourself admitted and they will infuse platelet. And we walked out of the clinic and me and my husband were like, ये क्या हो रहा है? अभी 10 मिनट पहले सब कुछ ठीक था. I started from my home. I told my son that Mama is just coming, and now she's sending me to the hospital. It was very a very weird, strange. I don't have words for that situation, but बहुत अजीब था कि कहाँ एकदम से नॉर्मल से उठ के ही क्या हो गया एकदम से. एंड देन वहाँ पे जाके काउंट हुआ एंड इट वाज सेम 10,000 एंड आई वाज टेकन टू द आईसीयू. एंड वहाँ पर उन्होंने फिर इन्फ्यूज़ किया प्लेटलेट रात को. नोबडी वाज अलाउड टू मीट मी. इन द मॉर्निंग आई मेट माई फैमिली एंड दे वर ऑल इन टीयर्स एंड आई आस्क्ड कि व्हाट हैपेंड. इन्होंने रात को प्लेटलेट चढ़ा दिए. सो जस्ट लाइक एनी अदर डेफिशिएंसी आई थॉट दैट कि भाई आयरन कैल्शियम जैसे होता है, खिलाएंगे सप्लीमेंट या इन्फ्यूज़ करेंगे ओरली, ठीक हो जाएगा. सो आई सेड दे हैव इन्फ्यूज़ तो ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं. बट आप लोगों के साथ क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों? आई मीन एवरीथिंग इज़ फाइन, राइट? So they said, yeah, everything is fine. We are just talking to the doctors and all. And so I said, okay. And I thought that it may be some infection or something like that. जिस वजह से ये हो रहा है. And in the meantime, I was not allowed to get up from my bed because they said I can bleed from anywhere. So I said okay. But then we were not very satisfied with that hospital, so we went to the another hospital, and there they again infused platelet to me, and they also started steroids immediately. And next day my platelet count went to 60,000. So we were little relaxed that बढ़ गया है count, so everything is on the right path now. एंड मे बी 1-2 दिन में दे विल डिस्चार्ज. बट ऐसा हुआ नहीं. एंड दे दे केप मी देयर फॉर अबाउट 10 days. बट देन प्लेटलेट काउंट थोड़ा बेटर हुए जा रहा था एवरी डे. इट वॉज लाइक बढ़ रहा था, 90-1 लाख ऐसे से हुआ जा रहा था. एंड उसके साथ साथ जो स्टीरॉइड्स ये थे उससे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो रहे थे वहाँ पे. एंड मतलब माई शुगर लेवल वॉज 270 समथिंग लाइक दैट. एंड I had diarrhea, a lot of other issues were happening. Then after 10 days, I was discharged from that hospital with a platelet count of 2 lakh. And then after 3 days, we went for the follow-up and the platelet count went down to 25,000. And that was the time I was shattered. I did not know what to do, what to say, and I had no clue what's happening with me.
I felt like my body is not responding. Why is it so? मतलब they are giving medicine. What kind of an infection do I have? क्या है? हम लोगों को उस वक्त तक बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या डिजीज़ है। ये मतलब दवाइयाँ दे रहे हैं, दे आर इन्फ्यूजिंग प्लेटलेट्स, स्टिल द प्लेटलेट काउंट इज़ नॉट कमिंग अप। वो आता है फिर वापस हो जाता है, रेमिशंस होते रहते हैं। सो हमारे साथ यही होता रहा कि प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता था, बढ़ता था, फिर वापस डाउन। And this is how this disease is the nature of the disease कि प्लेटलेट काउंट आपका नॉर्मल रहेगा, बढ़ेगा थोड़ा, उसके बाद वापस से वो डाउन हो जाता है। रेमिशंस बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो इसके अंदर यही होता है। और उसके बाद भी मतलब at that point in time when I had 25,000 platelet count, my doctor said that आप एडमिट हो जाओ वापस से। सो आई सेड नो, आई विल नॉट। आप मेडिसिन कर लो, जो करना है कर लो। आई हैव ऑलरेडी बीन देयर फॉर 10 days, नाउ आई कांट। सो दे सेड कि ठीक है, आई विल चेंज द स्टीरॉइड्स, आई विल चेंज, आई मीन इंक्रीज द डोज ऑफ इट। एंड ही डिड दैट, एंड उसके बाद भी जो काउंट था, इट वॉज फ्लक्चुएटिंग समवेयर बिटवीन 20 to 40, or I guess 60. It was like that only. And we went to all the hospitals possible. My husband, my family, they went to all the doctors, all the hematologists, जो हमें बता रहा था कि इनके पास जाओ, इनके पास जाओ। We were going there, and then हमें समझ आया जब हमारी एक दो डॉक्टर से elaboratedly बात हुई that it is ITP, immunothrombocytopenia purpura। इसके अंदर यही होता है, your immune system keeps killing your platelet thinking that it is some foreign antibody, और वो उसको किल करता ही रहता है, किल करता रहता है। एंड देयर आर ओनली टू वेज टू, इन द एलोपैथी, टू बैलेंस आउट। one is that either they will suppress your immune system so that it does not kill your platelet much, or they will increase your platelet count. How they will do that? They will give you medicines like a Revolad or electrotrombopag, it's the same I guess, and they will give that medicine, and that medicine pressurizes your bone marrow to make more platelets. That's how it is, यही हमें explain किया गया है। एंड सो वो प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। सो दे आर ओनली टू वेज टू बैलेंस इट आउट, या तो वो इम्यून सिस्टम कम कर देंगे, या तो वो इधर से प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करते हैं बॉडी में। दे ओनली टू वेज टू बैलेंस इट आउट, दैट्स इट। इसके अलावा एलोपैथी में हमें अभी तक कुछ समझ नहीं आया कोई इसका ट्रीटमेंट। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स से हम मिल लिए, एंड डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अगर आपकी प्लेटलेट काउंट इस 50 से ऊपर तक है तो कोई ऐसा मतलब डेंजर वाला कुछ सिचुएशन नहीं है। सो हम वही मतलब हम भी वही लेके चलते हैं कि ठीक है इतना तो रहे, बट ऐसा भी नहीं होता है। इफ़ आई एम नॉट ऑन मेडिसिन इट कैन गो डाउन मोर, उसका कोई रहता ही नहीं है। उसके बाद भी मतलब मेरी प्लेटलेट रही हैं, क्या कहते हैं, 13,000 भी हुई हैं उसके बाद भी, बिकॉज़ इसके अंदर रेमिशंस बहुत होते हैं। स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आता था कि ये रेमिशंस क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। कुछ भी होता था तो आई वुड हैव सम एपिसोड टू ब्लेम ऑन, लाइक वंस आई हैड अ टूथ एक्सट्रैक्शन। वो बहुत वेट कर कर के हुआ था, जब मेरी प्लेटलेट काउंट हैड कम अप टू 3 लाख। ये भी हुआ है, इतनी भी हो जाती हैं प्लेटलेट। सो थोड़ा डोज़ बढ़ा के जैसे भी है, डॉक्टर ने मेड इट टू 3 लाख सो दैट कि एक्सट्रैक्शन हो पाए। But that extraction happened, and then it was a very difficult one. Extraction में problem नहीं है, but उसके बाद मुझे bleeding इतनी हुई थी कि I could not stop bleeding for about 3 to 4 hours. I was continuously bleeding, and एंड साथ में फिर उसके मेडिसिन खाई मैंने, ये सब खाया। एंड उसके 3 दिन के बाद जब मेरा काउंट हुआ, माई काउंट वॉज 13,000। सो 3 लाख टू 13,000 जस्ट विद इन अ वीक, ये भी हुआ है। सो उस टाइम पे आई थॉट कि हाँ चलो मेडिसिन खाई थी उस टाइम पे, इसलिए हो गया है। एक बारी फिर एक इंजेक्शन दिए थे डॉक्टर ने, ओरल इंजेक्शंस टू इंक्रीज द प्लेटलेट काउंट इन बॉडी, बोन मैरो को वो पुश करने के लिए। एंड दे स्टॉप वर्किंग ऑन मी, फिर अगेन वापस से वो डाउन हुई। और कभी कभी ऐसे ही बिना कुछ करे, बिना कुछ ऐसा चेंज हुए बॉडी में, प्लेटलेट काउंट वापस से कम आ जाता है, कुछ नहीं पता चलता कब अप हो जाता है कब डाउन हो जाता है। देयर इज नो साइन, नो रीजन टू इट। दिस इम्यून डिसऑर्डर हैज़ नो रीजन वाई इट हैपन टू मी, हैज़ नो रीज़न कि किस लिए कब प्लेटलेट बढ़ती हैं, कब प्लेटलेट कम होती हैं, किस वजह से होती हैं, नहीं पता। ये प्रॉब्लम कब ठीक होगी, नहीं पता। इसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि इसका कोई कॉन्क्रीट ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है इन एलोपैथी। एंड
कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब ठीक होगा, इसका कोई आंसर नहीं है। और कितने दिनों तक चलने वाला है, ये भी नहीं है। यूजुअली हमें कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी होती है, कोई डिज़ीज़ कुछ भी होता है, हमें पता है थोड़ा ना माइंड हमारा सेट होता है ऐसे कि ना वी विल टेक एंटीबायोटिक्स फॉर आई गेस 5 डेज़ ले लिया, या फिर 1 मंथ तक मेडिसिन चल गई, चलो आई विल बी फाइन, ठीक हो जाएगा। इन दिस डिज़ीज़ इसका देयर इज़ नो पाथ, देयर इज़ नो एंड पॉइंट, कुछ समझ ही नहीं आता कि कब होगा। आप खाए जा रहे हो मेडिसिन, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। मतलब देयर वाज़ अ टाइम व्हेन आई वाज़ ईटिंग मोर मेडिसिन देन द फूड आई वाज़ ईटिंग। That was also has been a situation with me, and the side effects of those medicines is so bad कि वो आपको ऐसा फ़ील कराते हैं कि मतलब यू आर योर बॉडी इज़ निल, इट्स ज़ीरो, यू कांट जस्ट गेट अप फ्रॉम द बेड। आप I would just get up in the middle of the night and I would have random pains, and those pains were so bad that I couldn't, if I didn't had a painkiller, वो पेन ठीक नहीं होते थे। एंड ऑल्सो इसके अंदर कोई भी मेडिसिन आप नहीं खा सकते कि इफ़ यू हैव कोल्ड तो आप एक कुछ मेडिसिन ले लो, या फिर इफ़ यू हैव सम पेन तो यू कैन टेक अ पॉप अप पेन किलर, यू कांट। किस मेडिसिन से आपकी प्लेटलेट डाउन हो जाएगी नहीं पता। सो इट्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन, यू कांट डू एनी स्पोर्ट्स, यू हैव टू मेंटेन ऑल काइंड ऑफ प्रिकॉशंस दैट आपको कहीं पे चोट ना लग जाए, बिकॉज प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का इसके अंदर इशू रहता है। एंड जब प्लेटलेट कम होती हैं तब भी बहुत इशू रहता है कि दैट आई हैव टू कीप अ चेक कि कहीं से को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं से भी इंटरनली एक्सटर्नली कुछ भी कहीं से भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। या सो मैंने रिसेंटली और मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो तब बनाऊंगी जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, जब मुझे ये आईटीपी इशू नहीं रहेगा मेरी लाइफ में। बट आई थिंक गॉड हैड सम अदर प्लान्स। सो एंड क्योंकि मैंने रिसेंटली कुछ 2-3 लोगों से बात करी जिनको आईटीपी है, और मैं एक्चुअली जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो मैं देखती थी कि बहुत लोग हैं जिनको ये इशू है, बट मैं कभी बात नहीं कर पाई उनसे। तो मैंने जब अब रिसेंटली बात करी, एक तो मुझे रिग्रेट हुआ कि मैंने पहले क्यों नहीं बात करी। उनसे बात करके मुझे ये लगा कि बहुत क्लैरिटी आई मुझे इस चीज़ के बारे में कि अ, इतना पैनिक नहीं करना है एकदम से, क्योंकि हम एकदम से इतना पैनिक कर जाते थे। जब मेरी प्लेटलेट काउंट डाउन होती थी हम सीधा हॉस्पिटल चले जाते थे कि भाई इन्फ्यूज़ करो अब प्लेटलेट्स कि बिल्कुल डाउन हो गई हैं। तो ये नहीं करना है। और येस, इट्स अ बैटल दैट यू हैव टू फाइट, और ये आपके साथ कब तक रहेगा आपको नहीं पता, मे बी लाइफ लॉन्ग। एंड नाउ इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो मुझे उसी तरह से अपनी लाइफ को बनाना है, उसी तरह से चीज़ें रखनी हैं, प्रिकॉशंस लेने हैं, सब कुछ करना है। एंड सो एंड आई हैव ट्राइड आयुर्वेद ऑल्सो। आयुर्वेद करते करते भी रेमिशंस आते हैं। सो बट लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें जैसे सिखाई हैं आयुर्वेद ने भी कि आप योगा करो और अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। सो ऑल दैट आई एम फॉलोइंग। सो और उन्होंने वो भी ये चीज़ कर रहे हैं एक्चुअली। सो उनसे बात करके मुझे लगा कि अगर हम जैसे लोग जिनको आईटीपी है, वो अगर एक दूसरे से बात करेंगे तो हम एक दूसरे को बहुत हेल्प कर सकते हैं। ये जो एक बहुत इसके अंदर ना आप इमोशनली बहुत रोलर कोस्टर पे होते हो। यू आर फाइन, यू आर हैप्पी, आपकी प्लेटलेट जब बढ़ रही हैं या नॉर्मल है, एक ही लेवल मेंटेन्ड है। बट व्हेन द रेमिशन हैपन, जब वो डाउन हो जाती हैं, देन यू आर कम्प्लीटली शैटर्ड। आपको लगता है सारा जितनी आपने मेडिसिन खाई है, जितना आपने पेन लिया है, जितना आपने जो भी आपने अभी तक प्रिकॉशंस लिए हैं, सब कुछ करा है, इट हैज़ ऑल गॉन इनटू पेन। ऐसा उस टाइम लगता है कि बस अब क्या, ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बट ये किसी के भी साथ हो सकता है। दिस आईटीपी थिंग कैन हैपन टू एनीबडी। एंड अगर जिस तरह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर मुझे शायद कुछ ऐसा मिला होता देखने के लिए, समझने के लिए, जिस टाइम मुझे ये चीज़ें हुई, तो हम और मेरी फैमिली उतनी उतनी जो हमने ये 1 साल ऐसा देखा है, इतना डिफ़िकल्ट 1 ईयर देखा है, शायद उतना नहीं होता कि हमें पता होता क्या था, ये क्या नहीं। क्योंकि इनिशियली हमें बहुत टाइम लगा था समझने में, ये क्या इश्यू है, ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हुआ है। तो और व्हेन यू गो ऑन इंटरनेट आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं इस पे। यू विल नॉट फाइंड मच वीडियोज़ जिसमें कि आपको कोई बताए कि हाँ, किसी का कोई टेस्टिमोनियल या ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्ट अ फ्यू।
कुछ ऐसा नहीं है जो कॉन्क्रीट आपको लगे. सो इट्स माई अटेम्प्ट दैट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस ITP थिंग, बिकॉज इट कैन हैपन टू एनीबडी. और जिनको हुआ है उनके लिए ये है कि दैट आई वांट टू क्रिएट अ कम्युनिटी वेयर वी ऑल कैन टॉक टू ईच अदर, हेल्प ईच अदर. बिकॉज इसकी जो मेडिसिन आती हैं, दे आर नॉट वेरी easily दैट यू कैन गेट them, एंड दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों में. आई हैव सम मेडिसिन विच आई एम नॉट टेकिंग. आई कैन गिव इट टू somebody who needs them. And if I need some medicine, if I need some help, they can guide me. So it's that ways. And if there are some people जो इससे ठीक हुए हैं, I would love to talk to them, because everybody wants to be healthy in their life. Because ये चीज़ होते होते it's been an year now, और I think more than an year now. और आपको ऐसा लगता है सिर्फ आप इफ़ेक्ट नहीं होते हो, आपकी पूरी फैमिली इफ़ेक्ट होती है, एंड दैट गिल्ट इज़ रियली बैड. द मॉम्स गिल्ट, अ वाइफ्स गिल्ट, अ डॉटर इन लॉज गिल्ट, अ डॉटर गिल्ट, इट्स वेरी बैड. आपको बहुत गिल्ट में रख देता है ये चीज़ कि मेरी वजह से पूरी फैमिली मेरी सफ़र करती है. So, guys, please help me out, in reaching out to people and to spread awareness, because I want to create a community. I want to talk more about this ITP thing, and because it can happen to anybody, as I said. ये कुछ नहीं पता मेरे को, कुछ ऐसा एपिसोड कभी हुआ नहीं. All my reports have been fine. हमने 5-6 साल की पूरी रिपोर्ट्स देखी हैं. माई हस्बैंड हैज़ चेक्ड एवरीथिंग. मेरे कहीं पे भी कभी भी मेरी प्लेटलेट काउंट कम नहीं आया है. हम इनफैक्ट जब ये मुझे हुआ था, उससे जस्ट 1 month बिफोर आई हैड गॉट माई CBC डन, इन दैट ऑल्सो माई रिपोर्ट्स वर फाइन. So I really want to talk about this thing. I really want to share my experiences in this 1 year, what I have all gone through. I've gone through a lot. I had a bad tooth extraction. I had got under MTP, and have been a lot of episodes. I want to talk about all. I want to share with you guys कि क्या हुआ था and how I have overcome all of these situations. How my family and everybody has supported me, and how my friends have supported me in this thing, and how I managed, and अपने आप को मैंने वापस से उठाया है. बिकॉज मैं बस ऐसी सिचुएशन में आ चुकी थी कि दैट आई एम गुड फॉर नथिंग. आई कांट डू एनी थिंग नाउ. आई कांट वर्क. आई कांट डू एनी थिंग, नॉट जस्ट इन माई हाउस बट नो वेयर. आई कांट स्टार्ट माई करियर. नो, आई कांट डू एनी थिंग. मैं ऐसी सिचुएशन में आ गई थी. एंड वो मैंने कैसे ओवरकम किया, विद द सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स. आई वॉन्ट टू शेयर एवरी थिंग विद यू गाइज, बट आई जस्ट नीड योर सपोर्ट. सो प्लीज़ हेल्प मी आउट. थैंक यू.